जब नए लोग आते हैं ना तो पुराने लोगों को वो एक चैलेंज देते हैं। मैंने अपने बड़े एक्सपीरियंस से सीखा कि 10 to 15% आपको नए लोग हायर करने हैं एंड टेक यंग गाइस हु हैव नो एक्सपीरियंस। तो आज की डेट में कोई भी कस्टमर ये नहीं चाह रहा कि आप उसका इमीडिएटली कर दो, पर वो ये चाह रहा है कि इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर दो। पीपल डोंट लीव कंपनीज, दे लीव देयर मैनेजर्स। ठीक है। और मैंने बड़ा प्रैक्टिकल देखा लाइफ में कि जब भी हमने गधे लोग घोड़ों के ऊपर रख दिए तो जो घोड़े थे वो छोड़ के चले गए। पेटेंट में एक होता है टेक्नोलॉजी पेटेंट, एक होता है डिजाइन पेटेंट और एक होता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट इज जैसे आपने अपना कोई थॉट लिखा, 10 चीजें आपने सोचा आज मैंने ये लिखा, तो उसको कॉपीराइट कर दीजिए। तो आप देखेंगे कॉपीराइट एक ऐसी चीज है कि जो हर कोई कर सकता है, रोज कर सकता है। आप रोज अपने थॉट लिखते हैं, थॉट को लिखो, कॉपीराइट। आप इवन गवर्नमेंट के जाके, गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, वहां पे आप 2,000 रुपए की फीस जमा करा के आप अपना कॉपीराइट कर सकते हैं। तो रोज आप 10 कॉपीराइट पैदा कर सकते हैं अपने लिए। तो अभी हमने 40 पेटेंट फाइल किए हैं, जिसमें से हम 15 ले चुके हैं इस बार। Hi everyone, I'm Akanksha Bhargav this side. I've been an entrepreneur since last 17 years. It's been an incredible journey of many highs and many lows. Today I'm very successfully running a relocation business where we move people across the world. We shift houses within the city, within the country, overseas, and we also help offices relocate their spaces. In this journey of many adventures, managing people, resources, building culture, building a brand, and more importantly, focusing on service and making sure that quality never gets compromised. In this journey, I've had many people who have inspired me, who've taught me many things from their experience. And one person who stood out in this journey was back in 2008 when I was a young entrepreneur sitting in an audience and trying to take my notes of understanding how businesses are built. I heard Kubar Sachdev. He is a man who needs no introduction. He's someone who created a brand from nowhere and built an empire. And with time, things did not go that right, but he bounced back today and he's again building an empire called Swastika. I'm very, very honored here to sit across the table with him and have a chat with respect to his journey. A lot of entrepreneurs like me have been inspired by his story, and I think it will be a great idea to hear from the horse's mouth how he built his brand and how things did not go as per his, vision. But again, I think that's the journey we all take, right? And in his words that he says, it's not the destination but the journey that matters. So I have Sir here with me. Hello, thank you for joining me. Thank you, Akansha. I've been an ardent follower of yours. I never thought we'll get this opportunity, to be very honest. एक 20 साल की बच्ची जो सोचती थी कि 30 लोगों से कैसे मैं बिजनेस आगे बढ़ाऊं। हम उस टाइम पे आई थिंक 1 करोड़ के टर्नओवर पे थे और मुझे नहीं पता था कि कैश कहाँ से आएगा, ब्रांड कैसे बनेगा, लोग कैसे हायर होंगे एंड कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया जाता है। बट आपने एक टॉक दी थी टाई पे जब मैंने वो सुनी थी, and truly got inspired. So I really want to hear from you how that journey began, and yeah, I'm taking my notes again today. Thank you, Akansha, and thank you for hosting me. जैसे आपने बोला ब्रांड, तो मुझे भी नहीं पता था ब्रांड क्या होता है, बिकॉज सब लोग स्कूल कॉलेज से जब निकलते हैं और मेरे को कोई ऐसा मेंटर नहीं मिला जिसको मैं कहूँ कि उसने मुझे कुछ सिखाया. बट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल. सो आई क्रिएटेड दिस ब्रांड Sucam. And I was very young when I thought of this. I was just in college when I thought of this brand. And मेरी entrepreneurship journey जो बहुत जल्दी चालू हो गई थी. When I was just 15, 16, I started And selling this pens. is back into 1980s, right? Yeah, it is 1980s. So entrepreneurship was not as fancy as it's today. Actually उसका नाम entrepreneurship ही था. उसको बोलते थे सेल्समैन बोलते थे, मतलब कुछ भी बोलते थे. और उसको इतनी लोग बोलते थे यार गवर्नमेंट जॉब करो, वो सेफ जॉब है. गवर्नमेंट जॉब, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो. तो in those days I started early, so I got the advantage of learning things at a very early age of my life. And तुमने क्वेश्चन पूछा कि मेरी लाइफ क्या रही, तो मेरी लाइफ ऐसी जैसे आप चल रही है, मेरी जरा ज़्यादा ऊपर से नीचे हिचकोले ले गई. तो Sucam मैंने ब्रांड बिल्ड किया और उसके बाद कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स चालू हुई और उसमें कंपनी NCLT में चली गई और फिर वो कंपनी टेक ओवर बैंक्स ले गए और उन्होंने चला नहीं पाए. इन द मीन टाइम मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है, तो मैंने भी एक अपनी वाइफ के साथ
मेरी वाइफ ने एक कंपनी शुरू करी सुवास्तिका, और उसमें फिर थोड़ा काम करा जो मैं कर रहा हूँ आज। सर बट एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि आपने एक मतलब बेसिक ब्रांड बनाया और एक पीरियड ऐसा आया जब वो आपसे ले लिया गया. यू नो वी ऑल हैव सिचुएशंस वेयर वी आर नॉट श्योर व्हाट टू डू, बट you had to let go of something that was built by you. You owned it, and you probably went into a space which was very dark. And how did you come out of that? I think ये बहुत बड़ा learning है हम सबके लिए कि हार नहीं मान सकते कभी जिंदगी में. तो कैसे आपने कैसे डील किया उस चीज को? तो आकांक्षा देखो क्या हुआ है कि हमारे बिजनेस में भी हाइज एंड लोस चलते हैं, लेकिन हाँ एक 30 साल का बिजनेस बना हो बहुत और बड़ी वो बात एकदम ख़त्म हो जाए तो उसको लेट गो करना तो आसान नहीं है, ठीक है. सो बट धीरे 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 ऑब्वियसली आई वेंट टू डिप्रेशन, बहुत सारी नेगेटिव थॉट में गया. फिर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर्स का जो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है एंटरप्रेन्योर्स में जो होनी भी चाहिए कि आप बाहर कब निकलोगे. फंस तो गए उसमें, जैसे आप एक बिजनेस में किसी प्रोजेक्ट में फंस जाते हैं. It's easier said than done. It's very hard. हाँ हाँ मैं मानता हूँ उसमें टाइम ही ज़्यादा लगेगा ना, तो बाउंस बैक टाइम क्या है आपका वो इम्पोर्टेंट है. तो मुझे भी लगे 2 साल. 2 साल. जी 2 साल मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं, मतलब मैं काम कर रहा था कंप्यूटर में, कुछ नई चीज़ें सीख रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन मैंने बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट नहीं किया 2 साल. सीखना बंद नहीं किया बेसिकली. सीखना तो क्या था और कैसे टाइम कैसे पास करता. और सर अब कितने पेटेंट्स आपने वापस लॉन्च किए? तो अभी हमने 40 पेटेंट फाइल किए हैं जिसमें से हम 15 ले चुके हैं इस बार. सो वी आर टॉकिंग ऑफ हियर इज टेक्नोलॉजी पेटेंट. Correct. So technology, there are 3 type of patents. So technology patent, design patent, and then there is a copyright. आजकल एक और चौथा आया है जिसकी मैंने अभी नॉलेज नहीं लिया, मुझे नॉलेज लेनी बाकी है. सर एक चीज़ मैं समझना चाहूँगी कि पहले की जो एक बिजनेस चलाने का सिस्टम था और अब आपको डिफरेंस दिखता है थोड़ा कि कैसे आज की जनरेशन काम करती है, और पहले आप कैसे आपकी टीम थी और अब कैसे आप, क्योंकि मतलब आई एम स्टिल अ न्यू जेन एंटरप्रेन्योर, मेरे को हो गया 18 साल, बट आई थिंक आप उससे पहले से कर रहे हैं. तो मतलब अगर मैं अपने देखती हूँ मेरे बिजनेस में पहले कैसे काम होता था, व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू फील एंड व्हाट इज? So सबसे बड़ी बात है कि there are pros and cons. So पहली वाली जनरेशन थोड़ी ज़्यादा काम करती थी कि वो लोग शायद वो ज़्यादा काम दिखाते थे. आज की जनरेशन शायद दिखाती नहीं है, बड़ी क्लियर है भाई इतने बड़े गए हम तो काम से निकल गए. और कल भी लोग थे जो रिस्पॉन्सिबल थे, वो किसी भी कंपनी में रिस्पॉन्सिबल लोग बहुत कम होते हैं, चाहे वो हम मेरी जनरेशन में देख लो, चाहे आपकी जनरेशन में देख लो, चाहे आगे वाली जनरेशन में. तो बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. बाकी सब इनसे आप नॉर्मल काम कराओ, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो आपको पता फेल हो जाओगे. उसमें कोई भी आपको GM, VP, CEO कोई भी टैग दे दो आप उसको, ज़रूरी नहीं है वो रिस्पॉन्सिबल होगा. सो रिस्पॉन्सिबल लोग पहले भी बड़े कम थे, आज भी बहुत कम है. बट ये जनरेशन जो है सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, तो आज क्या फ़ायदा है कि आप घर बैठ के अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो. कल आपको डोर डोर जाना था, बड़े पैसे खर्चने थे, आपको सेल वाले लोग रखने थे, और बहुत सारा वो. आज के ज़माने में अगर आप डिजिटल समझ जाएं तो आप कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी सर्विस इन्वॉल्व नहीं है, तो आप घर बैठ के बेच सकते हो. सिर्फ आपको समझना है कि कैसे यूट्यूब पे चीज़ें डालनी है, या कैसे गूगल में ऐड चलानी है, या गूगल को कैसे आपने गूगल पे अपने आप को दिखना है. तो मुझे लगता है कि आज का जो ज़माना है वो बहुत बहुत ही अच्छा हो गया. अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपना काम शुरू करना चाहता है तो उसको कोई पैसे नहीं चाहिए. आज आपको GST करना है तो आपका ऑनलाइन है, कोई सर्टिफिकेट ही आ जाता है ऑनलाइन. तो आज जो बिजनेस करने का ईज हो गया है वो हमारे ज़माने में नहीं था. करेक्ट. बट कितनी बड़ी सीखने की बात है कि चेंज इज व्हाट यू हैव टेकन अप. यू नो चेंज इज कांस्टेंट. कई बार हम उसी में स्ट्रगल कर जाते हैं कि बदलाव कैसे लाएं, बिकॉज वी आर ऑल क्रिएचर्स ऑफ हैबिट. हम लोग जैसे करते हैं हमें कई बार लगता है वही सही तरीका है. तो आपने पूरा एक शिफ्ट किया है फ्रॉम बीइंग अ हार्डकोर सेल्समैन. आई थिंक टुडे आल्सो इट्स द सेम थिंग बट अ डिफरेंट वे, राइट? तो आजकल के टाइम में ब्रांड, मतलब अगर नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी और पैसा नहीं है एकदम हाथ में, तो क्या आप बताएं कैसे आप हमें गाइड करेंगे कि हम ब्रांड कैसे बनाएं? तो आकांक्षा सबसे पहले मैं एक बात बोलूँगा, ब्रांड होता क्या है? तो मैं बोलता हूँ ब्रांड है प्राइड. ब्रांड है प्राइड. ठीक है, वो प्राइड हार्ट बीट. पहले आप में होना चाहिए करेक्ट. कि यार ये. मुझे याद है कि मैं जब भी सुकम की शर्ट पहन के जाता था तो मैं हमेशा कोई भी काम करने से पहले सोचता था कि यार मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरा ब्रांड मेरे साथ जा रहा है, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ. सो आई मेड लॉट ऑफ चेंजेस इन माई मतलब सर्कल में घूमना करना कुछ भी करना. तो आई वॉज वेरी कॉन्शियस दैट कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए
कुछ ऐसा नहीं, बिकॉज आई एम You wear your brand. I wear my brand. Second, the immediate affected parties are employees. Right. तो अगर उनमें प्राइड नहीं हम पैदा कर पाए कि यार जिसके साथ तुम काम कर रहे हो, जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो, वो तुम्हें प्राइड होना चाहिए कि तुम इस ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, तो चैलेंज से वो सो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर हम उनमें प्राइड पैदा कर गए, चाहे आपका कस्टमर है, चाहे आपका बैंकर है, चाहे आपका सप्लायर है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर हम उनमें प्राइड पैदा कर गए कि यार वी आर एसोसिएटेड विद द ब्रांड, Correct. you are done. So I think that pride, creation of that pride takes a lot of time, lot of efforts, and you have to make sure that this pride goes in every person connected with the company. I'm actually getting goosebumps because ब्रांड एक्चुअली जो हम सोचते हैं कि हमने एक ऐड बना दिया और हमने ये बना दिया, बट जो सबसे लोएस्ट लेवल आपका जो इंसान आपके यहाँ काम करता है, अगर वो भी इस बात को फील करे कि यार यहाँ मैं काम करता हूँ, ये मेरी कंपनी है, तो आई थिंक दैट्स द मिशन दैट्स अकम्प्लिश्ड, राइट? That is brand. बट इट्स सो टफ, मतलब कम्युनिकेशन करना पड़ता है, कल्चर बनाना पड़ता है, आपको अपने आप को कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो आप मतलब आजकल बातें कम हो गई हैं लोगों के बीच में, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट टॉकिंग अगेन, राइट? अ लॉट मोर टू अवर पीपल. I think देखिए, अगर आपका एम्प्लॉय आपके साथ अटैच नहीं है, तो आप जितनी भी मेहनत कर लो, उसने एक फ़ोन आना है, उसने बोलना है सर ये कंपनी ठीक नहीं है, सर आप दूसरे से करा लो, तो आप तो गए, आपको तो पता भी नहीं लगेगा उसने क्या बोल दिया आपके अगेंस्ट. करेक्ट. या बाहर जाके बिचिंग करी, या अपने दोस्तों के सर्कल में जाके बोला कि यार हमारे यहाँ तो भाई ये कल्चर है, तो आप जो ब्रांड तो आपका लोगों के बीच में जाएगा ना, तो अगर उन्होंने अपने सर्कल में जाके कुछ गलत बोल दिया हमारे बारे में, हम वहीं गए काम से. सो ब्रांड इज नॉट दैट वी आर एडवर्टाइजिंग एंड वी आर ट्राइंग टू, फर्स्ट इट हैज टू बी इनकलकेटेड इन योर ओन टीम, इन आवर ओन एम्प्लॉइज. बट जो आज की जनरेशन है, आई डोंट नो हाउ इज एक्सपीरियंस, बट मुझे लगता है कि 2-2.5 साल के बाद सबको लगता है वी शुड जंप, वी शुड फाइंड समथिंग. सो हाउ डज दैट गेट सॉल्व टुडे? हाउ डू यू मेक देम स्टे विथ यू? बिकॉज जब तक आप रहोगे नहीं तब तक वो रिलेशनशिप बनेगा भी नहीं. सो देखिए, चैलेंजिंग, राइट? मैं भी ऐसी बहुत सारी जिंदगी से गुजरा हूँ जहाँ मैं जिंदगी भर एचआर ही करता रहा. कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है. बट क्या है कि देखिए, आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप अपने प्रोसेसेस इतने स्ट्रांग कीजिए, एचआर इतना स्ट्रांग कीजिए कि आप हर टाइम 10% ऑफ पीपल यू हैव टू टेक इट. एवरी ईयर यू हैव टू टेक 10 to 15% न्यू पीपल. सो क्या होता है, जब नए लोग आते हैं ना, तो पुराने लोगों को वो एक चैलेंज देते हैं. जब कभी कोई कंपनी हायरिंग बंद कर देती है, तो नया ब्लड आना बंद हो जाता है. जब नया ब्लड नहीं आता, तो पुराने वालों को कोई चैलेंज करने वाला नहीं होता. सो मैंने अपने बड़े एक्सपीरियंस से सीखा कि 10 to 15% आपको नए लोग हायर करने हैं, एंड टेक यंग गाइज हु हैव नो एक्सपीरियंस, बिकॉज हम कोशिश करते हैं एक्सपीरियंस लोग लें, करेक्ट. लेकिन एक्सपीरियंस लोग तो बड़े महंगे पड़ते हैं. फाइंड द रॉ मटेरियल, मेक देम फिनिश प्रोडक्ट. बिकॉज Find that. अगर आप रॉ मटेरियल लेंगे, नए बच्चे, यंग बच्चे लेंगे, Correct. आपको कम पैसे देने हैं, और उनकी आपके साथ आस्था जल्दी जुड़ जाती है. एंड जो लोग पुराने बैठे हैं, उनको वो कहीं ना कहीं हिट करते रहेंगे, वो कुछ ऐसा करेंगे, कुछ काम ज्यादा करेंगे, क्योंकि उनको प्रूव करना है. और जो ऑलरेडी प्रूवन लोग हैं, आप बाजार से उठाते हो, महंगे भी हैं, और उनको पता है हमें तो आता है, तो वो आके सबसे पहले आपका कल्चर बिगाड़ेंगे. करेक्ट. वो अपना कल्चर लेके आएंगे अपने साथ, तो आपके लिए अपना कल्चर बचाना ही बड़ा मुश्किल काम है. सो व्हेन यू आर हायरिंग मोर नंबर ऑफ पीपल, नेवर एवर हायर experienced people. Find new talent. Find new talent. That's a great You train them. Right, a great insight. मतलब ये मैं भी मानती हूँ, और हमारा जैसा काम है बहुत लेबर इंटेंसिव है, आपका भी वैसा ही है. सैलरी टाइम पे आना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट इफ़ यू आर नॉट फंडेड, यू आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग, यू आर पेइंग सो मच टैक्स एंड एडवांस पेमेंट. हम लोग B2B करते हैं, बाद में आता है. सो हाउ डज वन कीप योर सेल्फ सेन विद ऑल दिस कि भाई पेमेंट, मतलब एवरीबडी नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड यू आर द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन. तो कैसे आपने अपने आप को कैसे इतने साल उस चीज़ में मैनेज किया? तो आकांक्षा, देखो यार, एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, कोई एम्प्लॉय तो बन नहीं रहे. हाँ. अगर एम्प्लॉय वाले एटीट्यूड के साथ एंटरप्रेन्योर बनोगे तो कहीं पहुंचोगे नहीं. करेक्ट. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ पीपल. फर्स्ट थिंग इज दैट एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट. एम्प्लॉय इज नॉट इन्वेस्टिंग. एम्प्लॉय फर्स्ट टेक अ सैलरी. ही सेज यार मेरे को इतनी सैलरी दे देना, मैं काम करूं या ना करूं, या मेरा कोई रिजल्ट आए ना आए, तो आपको उसको सैलरी देनी है. एंटरप्रेन्योर सबसे पहले इन्वेस्ट करता है, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे रिसोर्सेज हो. तो हमारा काम है पहले इन्वेस्ट करना, फिर उस इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना. तो हमारा क्या है कि पहले हमने पैसा इन्वेस्ट किया, या रिसोर्सेज इन्वेस्ट किया, या दोनों इन्वेस्ट किए. हमारे को जीएसटी भी देखना है, इनकम टैक्स भी देखना है, सब कुछ देखना है. सो एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ इज नॉट ईजी. अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और वो सोचे यार मैं तो अच्छी सैलरी ले रहा हूँ, बाहर जाके तो मैं इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ. मैंने बहुत लोग देखे लाइफ में
जिन्होंने कहा अरे यार ये मेरी दम पे कंपनी चल रही है, मैं तो इससे बाहर आके बड़े पैसे कमा सकता हूँ, और वो बाहर आए एंड दे वर अ बिग फेलियर बिकॉज दे फर्स्ट दे डिडंट नो दे हैव टू इन्वेस्ट, बिकॉज एज एन एम्प्लॉय यू आर ऑलवेज टेकिंग and you're investing only time and your efforts, but you're not even investing everything. एंटरप्रेन्योर तो क्या है, अपने घर को भी बेच देगा, अपने घर को गिरवी रखेगा, सोल इन्वेस्ट हो जाती है, मतलब दिन रात आप बस वेरी वेरी राइटली यू सेड, सोल इन्वेस्ट हो जाती यू है. आर इन्वेस्टिंग अ लॉट. सो इन्वेस्टमेंट से सब कुछ स्टार्ट होता है. करेक्ट. सो देयर इज अ बिग डिफरेंस इन मेंटालिटी, यू नो, अपना माइंडसेट क्या है. सो ऐसा कभी हुआ है कि आपको लगा हो कि यार कल सुबह कैसे होगा, मतलब रात को नींद नहीं आई और सुबह मतलब एक घबराहट हुई कि कल सुबह मैं कैसे देखूंगा, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ? क्योंकि आई एम श्योर ये एक जर्नी है, बट इतना डीप कभी हुआ कि आपको लगे कि यार नेक्स्ट डे आई कांट फेस, ऐसा कभी एक हुआ? बार नहीं, बहुत बार हुआ, बहुत बार हुआ. Okay. लेकिन अब बहुत बार होने के बाद क्या हो गया ना, सुबह हुई नहीं, शाम अब हुई। आदत सी पड़ गई है. अब मैं इतना घबराता नहीं हूँ. और यू नो क्या होता है, कभी कभी बड़ी बार ऐसा होता है, हमें पैसा देना होता है किसी को, और हमें लगता है यार पैसा तो नहीं आ रहा है, और उसको मैं 2 बार टाल चुका हूँ, तीसरी बार टाल चुका हूँ. तो ऐसा बड़ी बार हुआ. मैं जनरली बड़ी सारे इंसिडेंट की रात को नींद ही नहीं आ रही, तो मैंने क्या करा, रात को सुबह सुबह उसके घर पहुंच गया. पहले आप, अच्छा okay. तो पहल मैंने कर डाली कि देखो यार पैसे नहीं आ रहे, लेकिन मैं आपको जैसे ही आएंगे, मेरे को टाइम पीरियड में आपको दिया, मैं 2 बार नहीं आपका पूरा कर पाया, तो मैं उसके घर चला गया. जनरली लोग क्या करते हैं, फोन नहीं उठाते. पर सर ये आपकी वैल्यूज हैं, कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही करते हैं, फोन नहीं उठाएंगे, बोल देंगे हम इंडिया से बाहर हैं हम, लेकिन आप यहाँ हो, लेकिन जब आपको किसी को पैसा देना है तो आप नीचे भी आए हो उस चीज में. आना ही पड़ेगा, बहुत मतलब- ब्रांड है ना. आपको मैंने बोला ब्रांड, करेक्ट. brand is always, you know, it has to be, brand is always built on the honesty, whether it is a product, services, employees, stakeholders, it has to be in the honesty form only. और कोई कुछ नहीं कहता है, आपको बस ये डर रहा होता है कि अगर मैं इसको बोलूंगा तो क्या करेगा. आप उसको जाके सिर्फ बताओ, झूठ बोलेंगे कि हम तेरे को कल देंगे, हमारा ये है वो है, तो वहां आप फंसने लगते हो. वो आपका चक्रव्यूह है जिसमें आप खुद ही फंसने लगते हो. सो बेसिकली कुछ भी हो जाए, अगर आपके मन में सही इंटेंशन है और आप सही सोच से आगे जा रहे हो, तो अगला दिन सुबह भी होती है और फिर शाम भी हो जाती है, तो दिन निकलता है, टाइम बीतता है, और आई थिंक एंड में सब ठीक ही हो जाता है. जैसा होना होता है, कोई रास्ता भगवान निकाल ही देता है. मैंने भी मतलब ऐसा ही हुआ है कि जब कुछ लगे कि आज तो समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कोई रास्ता निकल ही जाता है, बिकॉज यू वॉन्ट टू मेक इट वर्क. आई थिंक दैट्स एन इम्पॉर्टेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट. सो आकांक्षा, सारी बातें ना ब्रांड पे चल रही हैं. आप देखो, आप जो भी बात कर रहे हो ब्रांड पे चल रही है. करेक्ट. कि आपने इस सिचुएशन देखी, उस सिचुएशन में भी आपने ब्रांड क्रिएट कर लिया, क्योंकि आपने जाके उसको बोला सुबह मॉर्निंग में कि मैं पैसे नहीं दे पा रहा. मैंने हर चीज़ में ब्रांड क्रिएट करा है. देखिए, जब भी मेरे को कोई शिकायत आती थी, मेरे तक पहुंचती थी, कोई ने बोला इन्वर्टर खराब है, या हमारा बैटरी खराब है, या कुछ भी खराब है, तो मेरी सेक्रेटरी बैठती थी, मैं उसको बोलता था अब तेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है कि ये बंदे के साथ तूने ब्रांड बनाना है. तो हम उसको क्या करते थे, उसकी सब कुछ ठीक करा के उसको एक गिफ्ट भेजते थे. ओह, तो वो बंदे ने जिंदगी भर मुझे याद रखा कि यार मैंने कॉमर्स देव से, तो मेरा पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड हो गया, कंपनी का ब्रांड भी बिल्ड हो गया. सो यू नो, यू आर टॉकिंग एवरीथिंग व्हिच इज अराउंड ब्रांड ओनली. but that's not easy, क्योंकि सर्विस इश्यूज, फेलियर, चैलेंजेस तो एक सिचुएशन है जो आ सकती है. सो आज की डेट में कोई भी कस्टमर ये नहीं चाह रहा कि आप उसका इमीडिएटली कर दो, पर वो ये चाह रहा है कि इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर दो. आप उसको बता दो, कोई एक आदमी जाके खड़ा हो जाए कि आप उसको ये खड़ा होने के लिए बताने के लिए बैठा है कि सर मैं आपका काम कर रहा हूँ, ये लोग सारे काम कर रहे हैं, उसको स्टेटस दे दो. लोग सोचते हैं इसका आज ही काम होना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम उससे कम्युनिकेशन नहीं करते, ढंग से कम्युनिकेशन नहीं करते, उसके फोन नहीं उठाते, तो कस्टमर हमारे से दुखी होने लगता है. सो बेसिकली बिफोर यू डू एनीथिंग फैंसी विथ योर ब्रांड, आपको प्रोसेस, सिस्टम, और सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन ठीक करना बहुत ज़रूरी है. अगर वो चीज़ नहीं है तो आप कितने भी बड़े एडवर्टीजमेंट कर लो, क्लाइंट नहीं रुकेगा आपके पास. तो कोई ब्रांड फैंसी नहीं होता. मैंने बड़े सारे ब्रांड देखे जिन्होंने आके बड़ा सारी एडवर्टीजमेंट करी, सब कुछ करा, अगले दिन वो गायब है. आपने बड़ी सारी कंपनियों की ऐसी एडवर्टीजमेंट देखी होगी. एक कंपनी आई थी जिसने नमक में इतनी ऐड करी, फिर उसका नमक तो कभी मैंने देखा ही नहीं बाजार में. तो ऐसे बड़े सारे मैंने इंसिडेंट्स देखे, जो लोग आए बड़ी जल्दी आए, और ब्रांड ओवर ए टाइम बिल्ड होता है. आप सोचो जी आज मैंने पैसे लगा के कोई ब्रांड बिल्ड आज ही कर देना है, वो नहीं होने वाला. नहीं, बट कई बार आजकल थोड़ा फास्ट पेस पे लोग सोचने लग गए हैं. मतलब आई कम फ्रॉम द सेम थॉट, आई मीन 18 years लॉन्ग, बट कि एक स्लो प्रोसेस है. सबसे बड़ी बात है आपको बेस ठीक करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको अपने कस्टमर में की सर्विस में दर्द नहीं हो रहा ना, तो कहीं प्रॉब्लम है, कहीं सिस्टम में. तो फिर आपकी ऑनेस्टी नहीं है ना. हाँ. ब्रांड की ऑनेस्टी
सबसे पहला धर्म ब्रांड का है ऑनेस्टी। Correct. अगर आपने ऑनेस्टी क्रिएट नहीं करी, आप किसी जगह काम नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट से नहीं कर पा रहा, आई फेल्ड, नो बडी सेज एनीथिंग टू यू। आज की डेट में क्या है, कल भी था आज भी है, जो लोग ऑनेस्टी से ब्रांड बना रहे हैं, जो लगे हुए हैं, पूरा दम मार रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान कर रहे हैं, अपने कस्टमर का ध्यान कर रहे हैं, अपने सप्लायर का ध्यान कर रहे हैं, अपने बैंकर का ध्यान कर रहे हैं, जो कर रहा है वही ब्रांड बना रहा है और वही ब्रांड बना पाएगा। वेरी वेल सेड। तो ब्रांड की बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि आप हार्डकोर सेल्स वाले हो, ये तो खैर मैं जानती हूँ। आई थिंक अपनी स्टोरी सुनाओगे तो बहुत लोग हैरान रह जाएंगे कि आपने किस तरह से अपना सेल्स पिच आगे बढ़ाई और उस टाइम पे आपने कितनी सेल्स करी, खुद करते थे आप। बट आज के टाइम पे व्हाट डू यू थिंक हैज चेंज्ड एंड हाउ डू यू थिंक वी कैन मेक अ ब्रांड इन टुडेज टाइम्स? सो आज ब्रांड बनाना बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि आप डिजिटली कनेक्टेड हो। पहले किसी को भेजने से चिट्ठियाँ जाती थी पोस्टल से, हमें याद है कि चिट्ठी भेजना कितना मुश्किल काम था, ना पहुंचती थी ना कुछ होता था, पहले तो एड्रेस ही गलत मिलते थे। आज की डेट में आपका सब कुछ डिजिटल है, एक गूगल है, एक यूट्यूब है, एक इंस्टाग्राम है, और एक दो नाम ले लीजिए जो आपके वो जहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं। तो आपने इन 3 या 4 चैनलों को हैंडल करना है। पहले ज़माने में टीवी होता था तो उसमें बड़े सारे चैनल होते थे, एक चैनल में ऐड दो, उसी में पैसे खत्म हो जाते थे। तभी तो आप डिजिटल मीडिया में बड़े थोड़े कम पैसे में बड़ा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पता है आपको ये 3 या 4 ही प्लेटफॉर्म है। अब जैसे गूगल है तो गूगल प्लेटफॉर्म में याहू इन्वॉल्व नहीं होता, याहू बहुत कम है आज की डेट में, तो आपका एक ही प्लेटफॉर्म है गूगल, एंड उस पर आप जाके खुद ही एडवर्टाइज कर सकते हैं। आपने खुद ही अगर सीख लिया, मैंने देखा इतना आसान है कि आप खुद ही कर सकते हैं, आपको कोई एम्प्लॉय नहीं चाहिए। पीपल थिंक गूगल एड्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ऐसा लगता है। नहीं है पैसा तो क्या करें? डिपेंड करता है आप गूगल ऐड करना क्या चाहते हैं। अगर आपको पता है मैंने गुड़गांव में ही अपना सामान बेचना है तो गूगल इज वेरी चीप। अब आप कहते हो गूगल में मैंने ऐड ऑल इंडिया पे दे दी, तो जब आप ऑल इंडिया में प्रेजेंस ही नहीं हो और आपको ऑल इंडिया बिजनेस ही नहीं करना, तो गूगल इज वेरी स्पेसिफिक। तो जो लोग गूगल, अगर आपने गुड़गांव कर लिया, गुड़गांव को भी छोड़ो, उसको भी उस छोटा कर सकते हो आप जिस एरिया में आप काम करना चाहते हो। हाँ, गुड़गांव से नीचे तो कुछ काम नहीं है, लेकिन तो क्या है, गूगल आपको हर चीज के ऑप्शन देता है कि आप इतने में थोड़े पैसे में कर लो। आपको यूट्यूब है, फ्री है, आप अपनी डालो, फ्री है, एग्जैक्टली फ्री है बिल्कुल, आप वहां जाके वीडियो डालो और आपको पता होना चाहिए उसका एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तो मुझे लगता है कि मैंने जब डिजिटल में काम करना शुरू किया था तो इट वाज अराउंड 2008। तो मैंने सबसे पहले 2008 में फेसबुक का अपना चैनल बनाया था। तो हमारी सारी फैक्ट्रियों को कनेक्ट किया, लोगों को बोला अच्छा डालो। डीलर को हमें पता नहीं लगता डीलर ने प्रोडक्ट कहाँ लगाया, क्योंकि सोलर चल रहा था, तो सोलर में कोई भी डीलर हमें बताता ही नहीं था उसने कहाँ करा है। तो मैंने बोला अच्छा तुम फेसबुक पर डालो, हम तुम्हें पैसे देंगे। तो जो भी अपना प्रोजेक्ट था वो फेसबुक पे उस टाइम उसकी वीडियो या उसका कुछ जो भी था वो प्रोडक्ट डालता था और हम उसको पैसे भेजते थे। दिस वाज व्हिच ईयर? दिस वाज 2009 और 2008, व्हेन वी जस्ट स्टार्टेड। बिकॉज आपका डेटा भी इकट्ठा हो रहा था। अभी हमें किसी को डेटा देना होता था कि हमारी यहाँ इतनी इंस्टॉलेशंस हैं, हमें मिलती नहीं थी। वो जो लड़के थे कंप्यूटर में गलती करते रहते थे, कभी कोई लड़का चेंज हो गया, कभी कोई चेंज हो गया, हमारा डेटा ही नहीं इकट्ठा होता था। तो मैंने क्या किया, फेसबुक में आज भी आप जाएंगे सुकैम का फेसबुक पेज देखेंगे, तो मैंने बड़े डीलरों को पैसे दिए और बोला भाई तुम यहाँ डालो और मैं तुम्हें इसका इतना इंसेंटिव दूंगा, या जो मैं तुम्हें नया प्रोडक्ट दे रहा हूँ उसमें इसका इतना डिस्काउंट करके दे दूंगा। और मैंने आज भी अगर आप फेसबुक पेज खोल के देखेंगे 2008-9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, इतने प्रोजेक्ट हमने कर लिए। अब हमें किसी को भी बताना होता था हमारे प्रोजेक्ट देखने हैं, हम कहते थे यार फेसबुक पेज है, ये आप जाके देख लो। अदरवाइज आप इतना बड़ा चिट्ठी भेजो, इतनी बड़ी चीज़ें भेजो, और फेसबुक उसको ये भी दिख रहा था डीलर ने पटना में लगाया, बिहार में लगाया, पंजाब में लगाया, उड़ीसा में लगाया, नॉर्थ ईस्ट में लगाया, या इंटरनेशनली प्रोजेक्ट होते थे जैसे नाइजीरिया में बड़े लोग थे तो बड़े खुश होते थे डाल के। अच्छा, और उनको अपने फेसबुक सिखाया भी। सबसे पहले मैं, आप मानेंगे नहीं, कि मैंने अपने बच्चों को, जितने भी मेरे एम्प्लॉइज थे, उनको फेसबुक सिखाया कि तुम अपना फेसबुक पेज कैसे बनाओगे। हाउ लवली, दीस आर ऑफिस में बैठ के सिखाया, फैक्ट्रियों में बैठ के सिखाया, और वो बनाना ही नहीं चाहते थे। सॉरी, वो लोग बनाना ही नहीं चाहते थे, उनको पता था फेसबुक क्या होता है। तो मैंने बहुत सारे यंग एम्प्लॉयज को और जो थोड़े एजेड बंदे थे मेरे समय के, मैंने उनको सबको फेसबुक सिखाया, उनका अपना अकाउंट बनाया, लिंक्डइन अकाउंट बनाया, और मैंने उस चीज़ का पूरा फायदा उठाया सुकैम ब्रांड बनाने में। सो बेसिकली अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप स्टार्ट कर रहे हैं और कोई आपको बोलता है यार मार्केटिंग बजट क्या है आपका, तो बेसिकली ये को एक यू डोंट नीड अ बजट, यू नीड द राइट इंटेंट एंड द राइट स्ट्रैटेजी। सो पहली बात मैं आपको बताऊंगा, एंटरप्रेन्योरशिप में ना, जिसके पास, जिसने एंटरप्राइज करना है उसको पैसे से कोई लेना देना नहीं है। जितने पैसे हैं उतने का बिजनेस शुरू कर देंगे। करेक्ट, जो है पैसे हम उधार ले सकते हैं उतने पैसे से बिजनेस शुरू कर देंगे। लेकिन आप कहते हो यार मैं तो वो सीधा टाटा वाली कंपनी खड़ी करूंगा,
तो आप फिर पैसे ढूंढते रहो, उसी में अपने 90% भी एनर्जी लगा देनी है. सो मेरी थ्योरी में पैसे का जो महत्व है बड़ा कम है व्हेन बिजनेस इज कंसर्न, व्हेन यू आर डूइंग अ स्टार्टअप, जिसको आज लोग स्टार्टअप बोलते हैं. हमारे टाइम में तो कोई स्टार्टअप बोलता नहीं था. करेक्ट. शादी भी नहीं करते थे, लड़कियां भी नहीं देते थे लोग. अगर कोई बिजनेसमैन की फैमिली से हो Profit नहीं. तो बिजनेसमैन को शादी होती थी. जनरली जो डिफेंस के लोग हैं या जो लोग गवर्नमेंट की नौकरियां, तो अपनी बेटियां भी नहीं देते थे. बोलते थे यार इनके साथ लाइफ पता नहीं कल चले नहीं चले क्या होगा, क्या फितूर चढ़ा हुआ है, पता नहीं कौन से दुनिया में चल को रहा चोर है. माना जाता था. राइट. सो आपकी एक बहुत पुरानी स्टोरी है जो मैंने सुनी थी कि जब आपने शुरू किया था और you didn't have the funds and you didn't know how, like you didn't have that kind of money to put advertisements out there. आपने हाईवे यूज किया और आप जरा बताएंगे वो बात सबको. आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग, दो इट्स एन ओल्ड स्टोरी बट आई थिंक इट्स स्टिल वेरी इंस्पायरिंग. सो आकांक्षा, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी मैंने कोई काम किया ना, तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं कि मैं ये करने वाला हूँ, या मैंने ऐसा नहीं था कि मैंने बड़ा प्री प्लान किया. मैं आपको इसी के बारे में बताता हूँ. जो मैंने ढाबों पे मैंने जो बोर्ड लगवाए, तो हमारा क्या था, मैं एक दिन, मेरा बहुत ट्रैवल रहता था, तो मैं अपनी टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था. और मेरी बहुत अच्छी आदत थी, मैं टीम में जब भी ट्रैवल करता था, हम ना 3-4 गाड़ियां लेते थे, उसमें सब तरफ सूकम करते थे. वो हाईवे पे जाती थी, ऐसे लगता था हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या एक नेता चल रहा है. और मुझे था कि लोग हमें देखें, तो अपनी वैन्स पे, सब पे, जो भी गाड़ियां, हमारी 4 गाड़ियां होती थी, उस पर सब तरफ सूकम की ब्रांडिंग कर देते. तो हम एक ढाबे पे खाना खाने के लिए रुके. तो ढाबे वाला आया, वो बोलता है सर देखो ये जो, सर एक आप ये तो इस कंपनी को चलाते हो, ये सर आप इतनी ऐड कर रहे हो, आप एक हमारे यहाँ बोर्ड लगा के उसके नीचे मेरा नाम लिख दो. आई थिंक वो मेरा मार्केट गुरु बना, वो ढाबे वाला. क्योंकि उस टाइम कोका कोला के लोग बड़ा बोर्ड बनाते थे, बोर्ड लगाते थे. और कोका कोला के बोर्ड्स में क्या होता था कि वो उनकी एक पॉलिसी थी कि वो किसी भी टी स्टॉल का नाम नहीं लिखते थे. अगर टी स्टॉल वाला ऐसा अपना कोई नाम लिख दे तो उसमें भी वो लोग उसका बोर्ड हटा लेते थे. तो मैंने पहले दिन सीखा यार ये तो मेरा गुरु है. उस दिन हमने उसके बोर्ड लगाया और उससे पैसे लिए, मतलब थोड़े पैसे लिए, फिर अगला बोर्ड लगाया, उससे पैसे लिए. तो क्योंकि ढाबे वाले को अपना नाम चाहिए था और एक अच्छा बोर्ड चाहिए था जो लुक में भी अच्छा हो. तो वहाँ से फिर जर्नी चालू होगी. फिर मैंने उस जर्नी को करते करते हर तरफ बोर्ड लगवाया. फिर मैंने जितने भी धार्मिक स्थल थे, जैसे वैष्णो देवी था या साउथ का टेम्पल्स थे, जहाँ पे भी धार्मिक स्थल थे, उनके आसपास बोर्ड ही बोर्ड लगाए, क्योंकि मुझे पता था वहाँ लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं. तो ये जर्नी कभी ख़त्म ही नहीं हुई, और वो जर्नी हमेशा चेंज होती रही टाइम टू टाइम. कभी बोर्ड लगवाने थे तो कभी कुछ और करना था. बोर्ड लगाए, ब्रांडिंग करी, टीवी भी चला के देखा, टीवी में भी ऐड करी, अखबारों में तो ऐड करते ही थे हम. लेकिन आज की डेट में सबसे सस्ती ऐड है वो है डिजिटल. करेक्ट. नहीं, बट द फैक्ट इज कि पैसा कम हो तो भी क्या क्या किया जा सकता है. मतलब आपने तब उस टाइम पे बिना कुछ खर्चा करे पूरे शहर, मतलब पूरे हाईवे पे अपना नाम कर दिया, विच इज इनक्रेडिबल एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज अ टेक अवे. बट आई लर्नड इट फ्रॉम दैट ढाबा वाला ना. तो कहीं से भी सीख सकते हैं. ही वाज माय गुरु दैट वे. परफेक्ट. कि उसी ने मुझे आइडिया दिया, क्योंकि हम गाड़ियों पे लगा के चलते थे. उसने सोचा इतना आप गाड़ियों में खर्च रहे हो तो हमारे भी एक बोर्ड लगा दो. मतलब कि कोई भी आपको सिखा सकता है कहीं पर भी कोई भी तो चीज. दैट यू हैव टू लर्न ना. अभी आप प्री नोशन कुछ सीख के आओगे, आप सोचोगे यार मुझे पता है, तो बात नहीं बनेगी. यू हैव टू लर्न फ्रॉम द पीपल अराउंड यू. एंड कभी कभी लोग कुछ बोलते हैं तो आपको वो बोलता कुछ है और स्ट्राइक कुछ और कर जाता है. तो मुझे लगता है कि हम अगर लोगों को सुने, लोग क्या कह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, तो काफी कुछ हो जाता है. How amazing. So coming back to building a company, कल्चर के बारे में कुछ बताएंगे. जैसे आप कैसे अपने टीम को अपने साथ रख सकते हैं, लोग ना छोड़ें. कंपटीशन तो होता ही है खैर आसपास हमेशा. सो व्हाट इज बीन योर स्ट्रेटजी? सो मैंने एक चीज देखी जो बहुत किताबों में भी लिखा हुआ है कि पीपल डोंट लीव कंपनीज, दे लीव देयर मैनेजर्स. राइट. ठीक है. और मैंने बड़ा प्रैक्टिकल देखा लाइफ में कि जब भी हमने गधे लोग घोड़ों के ऊपर रख दिए तो जो घोड़े थे वो छोड़ के चले गए. तो कल्चर क्या है? देखिए, कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो आपको सोचना है. आपको एक पेन पेंसिल लेके सोचना है कि मैं क्या बिल्ड करना चाहता हूँ. कल्चर को आप बाहर से तो लाएंगे नहीं. आप सोच सकते हैं कि यार ये मेरी वैल्यूज़ हैं, ये मेरी चीज़ें हैं. तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है कि एंटरप्रेन्योर को खुद ही नहीं पता होता कल्चर क्या है. उसने कभी नोट डाउन नहीं किया. मुझे याद है कि एक ISO, हमारे यहाँ ISO का चला कि हम ISO करेंगे, ISO 9001 करेंगे. और जो लोगों ने हमें ज्ञान पिलाया कि ये अपना लिखो, कार्ड के पीछे ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो. फिर एक दिन मुझे समझ आया यार ये साले सब इधर की उधर की सुना के हमारे को लिखा रहे हैं. कार्डों के पीछे एक उन्होंने लिखा आवर मिशन, ठीक है, और वो भी पढ़ा पढ़ाया. जो
ISO 9000 का जो कंसल्टेंट आया था, उसने जो कहा उसने हमने कार्ड पे लिख दिया। मेरे को एक दिन बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये कर क्या रहे हैं हम, अब तो ये अपना कल्चर घुसा रहा है अपने अंदर। तो मैंने ISO 9000 का पहले मैनुअल खुद बनाया, मेरे 2 लोग और थे साथ में, तो कंपनी में एक MR होता है उसके लिए, मैं MR खुद बना और हमने पहला ISO 9000 का मैनुअल हमने खुद बनाया कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो मुझे लगता है ISO से मैंने बहुत कुछ सीखा कि आप राइट डाउन करो कि आप कल्चर चाहते क्या हो। मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं अपने घर का कल्चर यहाँ ला रहा हूँ या मैं अपने किसी और कंपनी का कल्चर यहाँ ला रहा हूँ। तो एंटरप्रेन्योर्स को ये खुद ही नहीं पता होता कि वो कल्चर चाहते क्या है, कभी लिखा ही नहीं, और वो कहते हैं हम कल्चर, हमारा कल्चर ये है। भाई कहीं रिटन डाउन है, कहीं बताया आपने, किसी इंप्लॉय को बताया, अपने आप को बताया? तो मुझे लगता है कल्चर इज व्हाट यू वांट टू डू, करेक्ट, हाउ यू वांट टू सी योरसेल्फ इन द मिरर। और मे भी आपको लगता है कि यार मिरर में तो मैं ऐसा देखता हूँ, लेकिन मेरे लोगों को ऐसा दिखाना है, चलो वही लिख दो। तो मुझे लगता है कल्चर इज वन थिंग विच यू हैव टू डिफाइन इट। putting down it on the paper is writing. very easy so that everybody First you get convinced कि this is what I'm writing, I'm going to abide by it. बात सारी कम्युनिकेशन की भी है नहीं, कि कम्युनिकेशन तब होगा ना जब आप पहले लिखोगे, अपने आप से तो कम्युनिकेशन करना है पहले। आकांक्षा पहले तो क्या मैं आपसे पूछता हूँ, आप कल्चर की बात कर रहे हैं, तो क्या आपने कोई 10 पॉइंट लिखे हैं अपने बारे में कि मैं ये 10 पॉइंट पे कंपनी को देखना चाहता हूँ? सर लिखे बहुत, तो फिर क्या बहुत बात है? अच्छा चलो 10 लिख लिए, हाँ। तो क्या कम्युनिकेट किया लोगों से? उनसे कम्युनिकेट नहीं करना है इस पे। वर्क इन प्रोग्रेस, नहीं, वर्क उनसे हमें, देखो मेरा क्या होता था कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में जब भी मीटिंगें करता हूँ, पहले भी जब करता था, तो मेरी कोशिश होती है कि जो मैंने सोच लिया वो मैं टेबल पे लाता हूँ और उसको डिस्कशन का पार्ट बनाता हूँ। और डिस्कशन के पार्ट में क्या होता है, लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर उन्हीं से पूछते हैं कि यार ये ठीक है क्या, ये ठीक है क्या, मेक देम इम्पोर्टेंट, बेसिक मेक देम इम्पोर्टेंट। और उसमें से मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई कुछ कह रहा है और रॉन्ग है। उनको सिर्फ एक वैलिडेशन चाहिए होती है कि हमें भी इन्वॉल्व किया प्रोसेस में। सपोजली आप अपनी कंपनी में 10 लोगों की मीटिंग करते हैं और अपने ये पॉइंट बोलते हैं यार कल्चर है, हो सकता है वो 2 लोग 2 चीजें ऐड करें या 2 चीजें सब्ट्रैक्ट करके 2 चीजें ऐड कर दें। वो जब टीम को लगता है ना कि हमारी ये हमने सोचा है, तो ही कल्चर बनेगा। आप सोच रहे हैं, आपने लिख लिया और आपने लोगों से डिस्कस ही नहीं किया, लोगों को बताया ही नहीं, तो फिर कल्चर तो आपकी जेब में पड़ा है, बाहर तो आया ही नहीं। अच्छा, होता है बहुत बार कि आप अपना एक मिशन स्टेटमेंट लिखते हो और फिर वो दिस इज व्हाट यू वांट। Yeah, it's a great insight. We should Thank you. build that up with the team and make them in part of it. So I think Without that, that's it will not happen. It's very important. Correct. Sir, आपका बहुत strong, I think forte है IP. उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? Because ये बहुत लोगों को लगता है technically है खाली, और जो technical काम करते हैं उन्हीं के लिए relevant है. But because you're an expert, I thought it's a good thing to ask. So I'm not an expert. लेकिन हाँ, मेरी लाइफ में एक लेडी आई थी मतलब वो है अभी भी, शालीन रायज़ादा। शी इज़ एन एक्सपर्ट ऑन IP। सो वो हमारी कंपनी में आई और उसने हमें जो ज्ञान बांटा, और फिर हमने कंपनियों में जाके उनकी पूरी टीम को भेजा, जाओ भी डालो, तो हमारी हर जगह पेटेंट फाइल होने हो गए। सो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे पेटेंट की बात करते हैं, तो पेटेंट में एक होता है टेक्नोलॉजी पेटेंट, एक होता है डिज़ाइन पेटेंट, और एक होता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट इज जैसे आपने अपना कोई थॉट लिखा, 10 चीज़ें आपने सोचा आज मैंने ये लिखा, तो उसको कॉपीराइट कर दीजिए। और आजकल कॉपीराइट क्या है, आप वेबसाइट पे जाइए अपनी, उस पर एक वर्डप्रेस में या कहीं पे भी आप लिखा आता है कि ये कॉपीराइट है, आपको कुछ करना नहीं है, आपने उस पर लिख दिया कॉपीराइट है। तो जो चीज़ आपकी है, सपोजली आप आज आप अपने आप कोई सामान इधर से उठा के इधर करते हैं, तो उसमें कोई इक्विपमेंट इन्वॉल्व होता है। वो इक्विपमेंट में कोई आप इंप्रूवमेंट करते हैं क्या? आपने इंप्रूवमेंट करी है? जो इक्विपमेंट आपने लिया उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करिए कि आपने यहाँ से सामान उठा के वहाँ लेके जाना है, या पैकेजिंग करनी है, तो क्या आपका पैकेजिंग का ना प्रोसेस नहीं। अच्छा, आपने प्रोसेस एक अलग चीज है। प्रोसेस है कि इसको ये 4 बंदे जाएंगे, ये 4 बंदे यहाँ से उठाएंगे, वहां से उठाएंगे, वो प्रोसेस है। इवन आप उस प्रोसेस को क्या आपने डिफाइन किया, वो आप कॉपीराइट कर सकते हैं। क्या आपने उस पर कोशिश करी कॉपीराइट करने की? Because I never thought that. तो वो उस पर भी कॉपीराइट है, उस पर कॉपीराइट हो गया कि आपका जो प्रोसेस है उसको आपने डिफाइन किया, फोटोग्राफ्स लगाई, और आपका वो कॉपीराइट हो गया। बेसिकली हर कंपनी, हर बिजनेस कॉपीराइट कर सकता है। पहली चीज, आपका जो भी थॉट है या जो आप ट्रेनिंग देते हैं उसका कॉपीराइट बना लीजिए, वो कॉपीराइट हो गया। फिर डिजाइन पे मैं आ रहा हूँ, तो क्या मैं फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप सामान रीलोकेट करते हैं, तो जो जिस चीज़ों से आप रीलोकेट करते हैं, क्या वो उसमें कुछ चीज़ों में आपके डिज़ाइन में इन्वॉल्वमेंट है? मतलब हाँ, आपका कार्डबोर्ड बॉक्स किस साइज का होना चाहिए, किस प्लाई का, कैसा दिखना उसके चाहिए। सिवाय क्या आपकी कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है यार जब हमने यहाँ से यहाँ तक उठा के पैलेट ऐसे लेके जाते हैं उसमें हमने बड़े चेंजेस करे हैं? सर होते ही हैं मशीन के हिसाब से। तो फिर उससे सब वो एक डिज़ाइन पेटेंट में आ जाता है।
तो आप जैसे देखेंगे ये कॉपीराइट एक machine- ऐसी चीज है कि जो हर कोई कर सकता है, रोज कर सकता है। आप रोज अपने थॉट लिखते हैं, थॉट को लिखो, कॉपीराइट आप इवन गवर्नमेंट के जाके, गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, वहां पे आप 2,000 रुपए की फीस जमा करा के आप अपना कॉपीराइट कर सकते हैं। तो रोज आप 10 कॉपीराइट पैदा कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि आपका थॉट है। But I don't think everybody thinks like that, and they are even aware of these things. मेरे तो इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, फिर मेरे को रुकना पड़ता है। मैं बोलता हूँ, और आजकल डिजिटल होने से बड़ा आसान हो गया है कि वर्डप्रेस में गए, आपको सबसे नीचे वाले खाने में लिखना होता है ये जो थॉट है आपका कॉपीराइट है, तो कॉपीराइट किसका है। तो मैं अपनी कंपनी का नाम लिखता हूँ, कभी कभी सुवास्तिका का, या मैं अपना कुंवर सदैव लिखता हूँ। तो कॉपीराइट तो आजकल ऐसा हो गया कि जो आप बिना पैसे के भी कॉपीराइट कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ प्रूव करना है अगर किसी ने वायलेट किया कि भाई मैंने कॉपीराइट ले रखा है इसका। Okay, that's very interesting because I don't think smaller businesses think like that. They because वो टेक्निकल से ज्यादा रिलेट करते हैं ना कि कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो सर्विसेज में. आई डोंट थिंक मेनी पीपल डू दिस, सो इट्स अ ग्रेट इनसाइट. थैंक यू. No, because I got this knowledge from somebody else. I'm just passing it on. Great. So that's important too, sharing of knowledge. Thank you, sir. Was a wonderful conversation. I think जितना मैंने जो सुना था आपके बारे में, जितना सोचा था, सामने बैठ के समझ आया कि क्यों लोग आपको इतना मानते हैं, and why you called the Inverter Man of India. So I think just to conclude what we spoke about today, and again, lots of insights for young entrepreneurs. We spoke about culture. I think बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने टीम को कैसे मोटिवेटेड और कैसे इन्वॉल्व रखते हैं. कल्चर बहुत भारी वर्ड है और आजकल बहुत यूज होता है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो चाहते हैं उसको लिखिए, अपने आप से कम्युनिकेट करिए. यू शुड नो व्हाट यू वांट एंड देन ब्रिंग पीपल टुगेदर फॉर दैट. Second, we spoke about a brand. Like sir said, we should wear a brand on our sleeves. अगर आपके सबसे नीचे वाला इंसान भी अगर आपकी कंपनी के बारे में बाहर जाके प्राउडली बोलता है कि मैं यहाँ काम करता हूँ, तो समवेयर आई थिंक वी विल हैव दैट मिशन अकम्प्लिश्ड. और बहुत मैटर करता है जब आपकी टीम, आप तो बोलते ही हो अपने ब्रांड के बारे में क्योंकि आपने उसको बनाया, आपने साचा है, लेकिन जब टीम बात करती है और टीम को भी उतनी ही प्राइड फील होती है, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ वर्क इज डन देयर. एंड लास्टली आई थिंक IP, जो मेरा भी एक नया लर्निंग हुआ है आज, कि आप किसी भी फील्ड में हो आप अपने IP फाइल कर सकते हैं. तो आई एम श्योर वी विल टॉक अबाउट दिस इन फ्यूचर कॉन्वर्सेशंस ऑल्सो. And if there is anything you wish to know, you can reach out to him. But IP is important. आप देखिए कि अपने बिजनेस में क्या है, जहां आप डिजाइन पेटेंट या अपना प्रोसेस पेटेंट या कोई भी तरीके का ऐसा प्रोसेस जो आपने बनाया और यूनिक है, उसको फाइल करें. और आई थिंक इट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर योर कंपनी. सो ऑन दैट नोट, ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय यू सर. थैंक यू सो मच. मेरे 18 साल आपके तजुर्बे के सामने बहुत कम है, बट हर बार कुछ सीखने को मिलता है. सो थैंक यू सो मच. Thank you, Akansha. Thank you very much.